کبھی سوچا کہ جبر و استبداد کے اس تاریک دور میں جب کردار فروشی عام تھی، جب ہر طرف دین کا نام لے کر دین پیغمبر کی جڑیں کاٹی جا رہی تھی، اس دور میں دین پیغمبر کی حفاظت کا علم بلند کرنے والے امداد اللہ مہاجر مکی کی بات کرو، اور دنیا نے دیکھا ہے میرے اکابر کا کردار. خدا کی قسم میں کہتا ہوں مجھے نہیں ضرورت کسی دلیل کی. حسین احمد کا وجود، شیخ الہند کا وجود، احمد علی لاہوری کا وجود میرے مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ انہوں نے سودے بازی نہیں کی، وہ بکنا نہیں جانتے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الذين قالوا ربنا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے. نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہیں ذل رحمانی. انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. زیادہ دن نہیں گزرے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، زیادہ دن نہیں گزرے یہاں کچھ لوگ رہتے تھے، جو دل محسوس کرتا تھا علل اعلان کہتے تھے. گریباں چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا، گریباں چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار ان کا. قضا سے کھیلتے تھے وقت کے الزام سہتے تھے، لپکتی تھیں ہزاروں بجلیاں ان کے نشیمن پر، لپکتی تھیں ہزاروں بجلیاں ان کے نشیمن پر. چٹانوں کی بلندی اور ظلم اور مصائب کو وہ سہتے تھے. دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر، دیار جانا کی عظمتوں سے گزرنے والوں سلام تم پر. تمام باطل کی قوتوں سے الجھنے والوں سلام تم پر. جفا و غداریوں نے مل کر تمہارے رستے میں بند باندھے،
जफाएं सहकर वफा के जलवे दिखाने वालों सलाम तुम पर। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सत तकरीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, समाअत फरमाने वाली बाइफत बाहया माओ बहनों, तारीख देवबंद आज की मेरी मारूजात का उन्वान है। वजूहात तो बहुत सी हैं इस उन्वान को इख्तियार करने की। एक वजह तो यह है कि मुहर्रमुल हराम का महीना है। 15 मुहर्रम को आज से तकरीबन 132 साल कबल सन 1282 हिजरी में बर्रे सगीर की सरजमीन पर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। उसी के यौम तासीस के हवाले से, उसके पस मंजर और पेश मंजर के हवाले से कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। एक वजह इस मजमून को इख्तियार करने की यह भी है कि बेगानों का तो रोज़े अव्वल से तरीक यही रहा है कि उन्होंने कोई तमगा ऐसा नहीं, कभी गुस्ताखी के नाम से, कभी एजेंटी के नाम से, कभी किसी नाम से, हत्ता के काफिर तक कह छोड़ा। सारे तमगात देते रहे, लेकिन शिकवा बेगानों से नहीं अपनों से हुआ करता है। आज के दौर में बहुत से ऐसे हैं, नाम के देवबंदी होने के बावजूद उनके अंदर न इतनी जुर्रत है न इतनी हिम्मत है कि वो खुद को फख्र से देवबंदी कह सकें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको मालूम ही नहीं है कि देवबंद किस चीज का नाम है। बाद ने तो यह समझ लिया कि देवबंद एक इमारत का नाम है, कुछ ने यह समझा कि शायद देवबंद किसी किताब का नाम है, किसी ने समझा कि शायद देवबंद किसी फिरके का नाम है, किसी ने कहा देवबंद किसी जमात का नाम है, और किसी ने यह सोचा कि देवबंद किसी बस्ती का नाम है। आओ आज मैं बतलाता हूं देवबंद किसका नाम है। मेरे दोस्तों, जिस दिन से मैंने ये ऐलान किया है कि जुमातुल मुबारक का खुतबा देवबंद के उन्वान पे होगा, मैं उसी दिन से सोच रहा हूं और एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है और अब तक मैं उसी सवाल को अपने जहन में बसाए हुए हूं जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। क्या सोचता ये हूं कि नाम देवबंद का लेना है, तारीख देवबंद की बयान करनी है, लेकिन जो ही ख्याल आता है कि देवबंद की तारीख को बयान करूं तो देवबंद की इमारत का एक एक पत्थर तारीख हुर्रियत का अनमोल बाब बन के मेरे सामने खुल जाता है और मैं सोचने लगता हूं कि किसकी शान को बयान करूं। जब ख्याल आता है तो उसी देवबंद का एक एक जर्रा तारीख हुर्रियत के परवानों की तरह मेरी आंखों के सामने झिलमिलाने लगता है और मैं फिर सोचने लगता हूं कि किस किस की अजमत का नाम लूं और एक एक देवबंद का बुजुर्ग रोशन किताब की तरह खुलकर मेरे सामने आ जाता है। मैं उस दिन से सोच रहा हूं किसकी सीरत को बयान करूं, किसकी सूरत को बयान करूं, किसके तकवे का हवाला दूं, किसकी अजमत को उजागर करूं, किसके तफसीर के इल्म के मोती बखेरूं, किसके मुहद्दिस होने की अजमत और जलालत को बयान करूं। सोच सोच कर बिलाखिर आज मेरी जुबान पर बेइख्तियार एक जुमला आया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरी दास्तां को छेड़ूं तो मगर कहां कहां से, कौन सा सिरा पकड़ूं, कौन से मोती तलाश करूं, कौन से फूल बखेरूं, किस फूल की महकार से तारुफ का आगाज करूं। सोचता रहा। कभी सोचा कि 1857 के जंगे आजादी के बाद
शामली के मैदान जिहाद के हीरोओं की बात करूं, कभी सोचा कि इल्म और तकवा की धूम मचा देने वाले पारसियों, मजूसियों, ईसाइयों और आर्या समाज को मुनाजरे के मैदान में शिकस्त फाश देकर इस्लाम की अजमत की वकालत करने वाले उस नीली लुंगी वाले कासिम नानोतवी के इल्म की बात करूं, कभी सोचा कि जबरो इस्तिबदाद के इस तारीख दौर में जब किरदार फिरोशी आम थी, जब हर तरफ दीन का नाम लेकर दीन पैगंबर की जड़ें काटी जा रही थी, उस दौर में दीन पैगंबर की हिफाजत का आलम बुलंद करने वाले इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की बात करूं, कभी सोचता हूं कि जिसकी काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं गुंबद खजरा के साए में गूंजती रही, उस हुसैन अहमद मदनी की बात करूं, कभी सोचा कि जिसकी फकाहत की धूम अरबो आजम में मची, उस रशीद अहमद गंगोही की बात करूं, कभी सोचा कि जिसने माल्टा की जेल को अपनी जुर्रत के साथ जगमगा दिया, उस जाफर थानेसरी की बात करूं, कभी सोचा कि फरंगी को ललकारने वालों की बात करूं, कभी सोचा कि 40 साल तक तने तनहा शिर्क बिदअत के खिलाफ जंग लड़ने वाले और खत्मे नबुव्वत का तहफ्फुज करने वाले अताउल्लाह शाह बुखारी की बात करूं। सोचता रहा, कभी अबुल कलाम का नाम आया रोशन किताब की सूरत में, कभी शेखुल हिंद का नाम आया एक रोशन तारीख की सूरत में, एक एक नाम आंखों के सामने जगमगाता चला गया। सोच सोच कर कहां से आगाज करूं, किस सिरे से शुरू करूं, बिलाखिर आज मैंने फिर अल्लाह के कुरान का सहारा ले लिया। मैंने रब के कुरान को देखा तो कुरान ने मुझे दावत फिक्र दी कि मुझसे आगाज करो। ठीक है या नहीं? तो आओ फिर कुरान से अपनी बात का आगाज करते हैं। ठीक है, बोलोगे साथ साथ या नहीं? कुरान से आगाज करते हैं। कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। कुरान का एक एक लफ्ज हीरे जवाहर और मोतियों के खजानों से ज्यादा कीमती है। जी तो चाहता है अल यौम के अलफ से शुरू करूं, एक एक लफ्ज के बोलूं, लेकिन असल उन्वान मेरा जो है वो तिश्ना तकमील रह जाएगा। इसलिए मैं इस आयत के आखिरी हिस्से की बात करता हूं। रब्बुल आलमीन ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे महबूब दीन को कामिल नहीं, मुकम्मल नहीं, आज के दिन अकमल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमतों को पूरा कर दिया है। आगे एक जुमला कहा व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब तेरे लिए, महबूब तेरे लिए पसंद मैंने किया है, पसंद मैंने किया है। लकुमुल इस्लाम, इस्लाम को बतौरे दीन के पसंद करने वाला कौन है? किसके लिए पसंद कर रहा है? जो खुद रब को सारी कायनात में सबसे ज्यादा पसंद है, उस जात के लिए पसंद कर रहा है, उस दीन को जो खुदा को सारे दीनों में सबसे ज्यादा पसंद है। पसंद किया सबसे ज्यादा महबूब दीन, सबसे ज्यादा महबूब इंसान के लिए, और जब उसको अता किया उस दिन से लेकर आज तक खुदा का उसूल फिर यही रहा है, पसंदीदा दीन की खिदमत के लिए, पसंदीदा दीन की हिफाजत के लिए, पसंदीदा दीन के पासवानी के लिए, पसंदीदा दीन की अजमत को उजागर करने के लिए। जिस तरह दीन पसंदीदा रहा है, इसी तरह हर दौर में दीन वाले खुदा के पसंदीदा रहे हैं। मैं यहीं से अपनी बात का आगाज करता हूं। जिस तरह दीन खुदा को सारे दीनों में महबूब रहा है, दीन खुदा ने अपनी पसंद का चुना हमारे लिए, इसी तरह खुदा ने दीन वाले भी अपनी, बोलो, अपनी पसंद के चुने और फिर उनकी ड्यूटी लगाई कि आमना के लाल के दीन को मिटने नहीं देना, पैगंबर के दीन पे आंच आने नहीं देनी, नबुव्वत का लहराया हुआ परचम तौहीद सरनुगू नहीं होने देना। और फिर दुनिया ने देखा है
कि जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत और अपनी खत्म नबुव्वत का परचम फारान की चोटी पे बुलंद किया है, खुदा ने उस दिन से लेकर आज तक ऐसे इंसानों की कमी पैदा नहीं की, बल्कि हर दौर में अपने पसंदीदा इंसानों को पैदा किया है जो मोहम्मद के उस परचम को आज भी सरबुलंद रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक रखेंगे। इंशाअल्लाह रखते हैं या नहीं रखते? और उन्हीं की बात करता हूं, पहले दिन परचम थामा है, उस परचम को थाम कर नबुव्वत ने ऐलान किया है, परचम न गिरे, जान जाती है चली जाए। परचम था कुल आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाने का, अल्लाह का खौफ दिल में बसा लेने का, मोहम्मद की नबुव्वत और खत्म नबुव्वत को तस्लीम कर लेने का परचम उठाया है। ऐलान किया सुम्मस्तकिम, जो इस परचम के नीचे आ जाए फिर डट जाए, फिर डट जाए, कट जाए, झुके ना, क्या ना करे, झुकने की इजाजत नहीं है। आका ने परचम उठाया है, उठाकर सिद्दीक को पकड़ाया है। बोल पढ़ो। हाँ, पकड़ा है, सिद्दीक को पकड़ाया है। सिद्दीक ने गिरने दिया है? बोलो बुलंद आवाज से। हाँ, ऐसा मौका भी आया, इर्तिदाद की आंधियां चली, वही तो थे मुस्तफा के हाथों से परचम पकड़ने वाले। क्या कहते हैं? फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, सिद्दीक हालात साजगार नहीं, मसलहत की चादर ओढ़कर, तवज्जो, हालात साजगार नहीं, हालात के तकाजों को समझकर, हालात को सामने रखते हुए लश्करों को बाहर न भेजिए, इर्तिदाद के खिलाफ, मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद न कीजिए। सिद्दीक जैसे नरम शख्स का इतना सख्त जवाब था। फरमाया, उमर इस्लाम से पहले बहादुर बनते थे, इस्लाम के बाद बुज़दिल बन गए हो, नामुमकिन सी बात है सिद्दीक के साथ कोई भी ना चले। जो परचम मोहम्मद ने पकड़ाया है, सिद्दीक अकेला लेके निकल पड़ेगा, कट जाएगा, नबुव्वत का परचम गिरने नहीं देगा। और सिद्दीक ने उस परचम को पकड़ा है, पकड़ के बुलंद किया है, परचम की हिफाजत की है, और दुनिया ने देखा सिद्दीक ने सारी कायनात का मुकाबला किया, सारी कायनात के अंदर मेरे मुस्तफा के दीन की धूम मचाई, उस परचम को बुलंद से बुलंद करते चले गए, गिरने नहीं दिया। गिरने वही परचम फारूक आजम के हाथ में आया, उन्होंने भी गिरने, वही परचम उस्मान के हाथ में आया, सारी कायनात ने मुखालफत की लेकिन परचम को गिरने नहीं दिया। दीन था ना मेरे महबूब का, अली के हाथ में आया, हिफाजत कर छोड़ी, हजरत हुसैन के हाथ में आया, करबला तक गए, खानवादा लुटा छोड़ा, परचम गिरने, बोलो, नहीं गिरने दिया। कटते चले आए, लड़ते चले आए, एक मुस्तफा के दीन की खातिर लड़ते चले गए, कुर्बानियां देते चले गए। बिलाखिर वो वक्त भी आया मेरे महबूब के दीन के लिए अल्लाह ने सहाबा की पूरी जमात को चुना, सारी जमात ने मेरे नबी के दीन की हिफाजत की। और मैं कहता हूं, तवज्जो, कभी देखा होगा, सुना होगा, सारी कायनात को छोड़कर मेरे महबूब जब मदीने में गए थे तो किसके घर में ठहरे? अबू अय्यूब अंसारी के घर में। किसके घर में? अबू अय्यूब अंसारी के घर में रज़ी अल्लाह ताला। सब कुछ छोड़कर उसके घर में गए। आज हमारे पास एक बाल हो ना, किसी बुजुर्ग का ही हो, संभाल संभाल के रखते हैं, जी निशानी है। जिस घर में मुस्तफा के कदम लगे वो घर भी तो निशानी था। चाहते तो अबू अय्यूब अंसारी चिमटे रहते वहीं से कि नहीं हिलता, महबूब की निशानी है, नहीं हिलता, आका के कदम लगे हैं, कहीं नहीं जाता, इसलिए कि महबूब यहां पे आए हैं। लेकिन जब मैं तारीख की किताबों को खोलता हूं मुझे नजर आता है कि अबू अय्यूब अंसारी की कब्र तो जाकर दीवार चीन के साये में बनी हुई है। मैं हैरान होकर पूछता हूं कि रसूलुल्लाह तो अबू अय्यूब के घर में आए थे, अबू अय्यूब चीन में क्या लेने गए थे? जवाब मिलता है वो मोहम्मद के दीन का फरेरा लहराने के लिए गए थे। मैं देखता हूं सारी दुनिया में मोहम्मद ने जिनसे प्यार किया है, किसी की कब्र दमिश्क में बनी हुई है, किसी की कब्र शाम
शाम में बनी हुई है, किसी की कब्र कुस्तुनतुनिया में बनी हुई है, किसी की कब्र अफ्रीका के जजीरों में बनी हुई है, कोई आकर मुल्तान में आराम कर रहा है, कोई आकर पिशावर की सरजमीन पे सोया हुआ है, कोई अफगानिस्तान की वादियों में आराम कर रहा है, कोई बुखारा और समरकंद की वादियों में आराम करता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे नबी के यारों, कलमा तो तूने मोहम्मद के देश में मक्के और मदीने में पढ़ा था, बुखारा और समरकंद में कैसे आ गए हो? जवाब मिलता है, कलमा मोहम्मद ने मक्के में पढ़ाया था, दीन को हमने दुनिया में फैला छोड़ा है। परचम को उन्होंने गिरने नहीं दिया, उसी परचम को थाम कर, तमहीद को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, उसी परचम को थाम कर सहाबा निकले। वही परचम ताबेईन के हाथ में आया। कभी अबू हनीफा की सूरत में वो जेल में चले गए, कुर्बानियां तो दे छोड़ी, जिस्म पे कोड़े तो खाए, जनाजा जेल से निकला, लेकिन नबुव्वत का परचम गिरने नहीं दिया। वही परचम तबा ताबेईन के हाथ में आया, फिर दुनिया ने देखा, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के हाथ में आया तो परचम को गिरने नहीं दिया। वही परचम अहमद इब्ने हंबल के हाथ में आया, जिस्म पे कोड़े लगे, लेकिन परचम को गिरने नहीं दिया। वही परचम इमाम मालिक के हाथ में आया और चेहरे को काला करके ऊंट पे बिठाकर मदीने की गलियों में रुस्वा करने की कोशिश की गई है, लेकिन इमाम मालिक के हाथों से नबुव्वत के दीन का परचम गिरा नहीं है। वही परचम असहाबे रसूल ने ताबेईन को दिया है, वहां से तबा ताबेईन को मिला है, अइम्मा दीन को मिला है, फुकहाए उम्मत को मिला है, अइम्मा उम्मत को मिला है। सबने जाने लुटा छोड़ी है, परचम को गिरने नहीं दिया है। और वही परचम उन्हीं के हाथों से चलता हुआ आगे आता गया है। बिलाखिर उसी परचम को किला ग्वालियर की जेल में मुजद्दद अल-फसानी ने गाड़ छोड़ा है और दुनिया को बतला दिया है, और तुम दीन की बात मैदान में करते हो, मुजद्दद ने दीन की बात काल कोठड़ियों में कर छोड़ी है। हाँ, उसने दीन मुस्तफा के परचम को पकड़ा है, पकड़ के ग्वालियर के किला में जाकर उसी परचम को गाड़ा है। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वो चौकीदार, पैगंबर के दीन का वो पासबान, नबुव्वत की वरासत का वो अमीन मुजद्दद अल-फसानी 2 साल तक किला ग्वालियर की जेल में रहे। 2 साल के बाद वहां के सरबराह ने, इलाके के बहुत बड़े अफीसर ने, या उस वक्त के जहांगीर बादशाह ने किसी बड़े को भेजा के जाओ देख कर आओ मुजद्दद का नजरिया बदला है या नहीं बदला, मुजद्दद का मौक़िफ़ बदला है या नहीं बदला, मुजद्दद के अकीदे में फर्क आया है या नहीं आया, मुजद्दद के ईमान में लग़ज़श आई है या नहीं आई। लेकिन दुनिया जानती है, और देखने वालों ने आकर जवाब दिया, और जिस मुजद्दद के हाथ में मोहम्मद का परचम है, वो मुजद्दद कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। क़यामत की सुबह आ सकती है, मुजद्दद के अकीदे में फर्क नहीं आ सकता। और फिर देखा है 2 साल की मुद्दत में ग्वालियर के किले की जेल में उसी मुजद्दद ने सिखों को कलमा पढ़ा छोड़ा है, हिंदुओं के ईमान की दौलत नसीब करवा छोड़ी है। अपने किरदार, अपनी जुर्रत, अपनी हिम्मत, अपनी इस्तकामत की वजह से। और उसी मुजद्दद के हाथ से परचम जब आगे चला है, हर कोई कटता चला गया है। कभी गजनवी की सूरत में किसी ने परचम थामा है तो सोमनाथों की दजियां बगैर छोड़ी हैं, कभी मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में किसी ने परचम पकड़ा है तो उसने आकर कुफर को ललकार कर इंसानियत की और इस्लाम की अजमत को दोबाला कर दिया है। कभी इसी परचम को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पकड़ा है तो दुनिया के बड़े बड़े ईमान फरोशों का मुकाबला करते हुए, गद्दारों की गद्दारियों का मुकाबला करते हुए उसने अपनी जान तो दे दी है, लेकिन परचम इस्लाम को सरनगू नहीं होने दिया। फिर यही परचम चलता हुआ टीपू के हाथ में आया है। उस टीपू सुल्तान ने 30 साल तक फरंगी की कुफरिया यलगार के आगे तने तनहा बंद बांधा है और दुनिया को बतलाया है, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, मोहम्मद के दीन का परचम जिसके हाथ में हुआ करता है वो इस परचम पे जान तो दे देता है, खून के कतरात तो बहा दिया करता है, जिंदगी निछावर कर दिया करता है, लेकिन परचम को सरनगू नहीं होने दिया करता। टीपू कट गया है, परचम नहीं गिरा। परचम, हाँ यही परचम है, हर एक के हाथ में आता चला गया, गिरा नहीं। हत्ता कि यही परचम शाह वलीउल्लाह के हाथ में आया है। बर्र सगीर की सरजमीन पर उसने इस दीन के परचम को लहराया तो दुनिया ने देखा कि यहाँ पर दीन ईमान की, ईमानो इस्लाम की, ईमानो ईकान की कंदीलें रोशन हो गई। बर्र सगीर में इल्म, मेरे नबुव्वत के दीन, मेरे नबी के उलूम नबुव्वत के इरफान फैलने लगे। कुफर को कब बर्दाश्त था, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। शाह वलीउल्लाह के अंगूठे कट गए लेकिन परचम नहीं गिरा। परचम, हाँ परचम गिरा होता शाह वलीउल्लाह के मदरसे से,
फरंगी के खिलाफ शाह वलीउल्लाह का बेटा अब्दुल अजीज मोहतस देलवी कभी जिहाद का फतवा न देता। यह इस बात की दलील है, अंगूठे कटे हैं, लेकिन शाह वलीउल्लाह के बेटे ने मदरसा तोपों से शहीद करवा छोड़ा है। शाह वलीउल्लाह के बेटे ने लेकिन नबुव्वत के दीन का परचम गिरने नहीं दिया और उसी मदरसे से ऐलान किया है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। वही शाह अब्दुल अजीज मोहतस देलवी थे, परचम पकड़ा है, वही परचम उन्हीं के हाथों से चलता हुआ शाह इस्माइल और सैयद अहमद शहीद के हाथों में आया है। उसी परचम को लेकर बालाकोट की चोटियों पे आ गए हैं। दुनिया ने वहां भी देख लिया, चश्मे फलक ने अपनी आंखों से देखा है कि जब वो परचम लेके पहुंचे तो सिखों ने, बड़े बड़े सिखों के चेयरमैन रंजीत सिंह ने पेशकश की सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कि जनाब आपको सरहद की गवर्नरी देते हैं, आपको फलां जगह पे जमीन अलाट करते हैं, मुरब्बे देते हैं, जायदाद देते हैं। आए हाय मुस्तफा के परचम की कदर कीमत पूछनी हो तो सैयद अहमद शहीद से पूछो, नबुव्वत के दीन की अजमत पूछनी हो तो सैयद अहमद से पूछो। उसने कहा है चंद मुरब्बों के बदले, थोड़ी सी हुकूमत के बदले नबुव्वत का दीन खरीदना चाहते हो, भूल जाओ सैयद अहमद शहीद को सारी दुनिया की हुकूमत भी दो तो मोहम्मद के परचम को गिरने नहीं देगा। सौदेबाजी की बात करते हो, ये बिकने वाले लोग है ही नहीं। वही परचम पकड़ा है, बालाकोट की वादियां खून से रंगीन हो गई हैं, नबुव्वत के दीन पे धब्बा नहीं आने दिया है, वो परचम गिरने नहीं दिया है। वही परचम, वही दीन की विरासत चलते चलते पूरी आबोताब के साथ, पूरी शान शौकत के साथ, वही गुलशन जिसकी आबयारी उलमाए हक ने खून से की है। वो ऐसा वक्त भी आया, 1857 का दौर था, जब दुनिया ने देखा कि लोग भूल चुके हैं मोहम्मद इब्न कासिम की जरूरत को, लोग भूल गए थे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, लोग भूल चुके थे गजनवी को, लोग भूल चुके थे बड़े बड़े इस्लाम के जर्नैलों को, लोग भूल चुके थे सिद्दीक अकबर की इस्तकामत को। वो दौर जब फरंगी इस्लाम को मिटाने का आज़म कर चुके थे, वो दौर जिसके अंदर इस्लाम की अजमत को, इस्लाम के वक्कार को खाक में मिलाने का आज़म कर लिया गया था, वो दौर जिस दौर में अपने बेगाने बन चुके थे, वो दौर जिसमें किरदार की अजमत को रुस्वा कर दिया गया था, वो दौर जिस दौर में मोहम्मद के दीन की कदर कीमत चंद मुरब्बे और पलाट रह गए थे, वो दौर जिस वक्त बड़े बड़े मौलवियों ने अपने सरों पे पगड़ियां बांधने वालों ने मोहम्मद के दीन की जड़ें अपने हाथों से काटना शुरू कर दी थी, वो दौर था जब अपने गद्दारियों पे उतर आए थे। जरूरत थी किसी मोहम्मद इब्न कासिम का नाम लेने वाले की, जरूरत थी किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पे चलने वाले थी, जरूरत थी वही सिद्दीक वाला परचम थाम के चलने वाले की, जरूरत थी किसी फारूक आजम की रूहानी औलाद की, जरूरत थी किसी उस्मान जैसे अजमत वाले की, जरूरत थी किसी गैरत ईमानी के पैकर की, जरूरत थी किसी किरदार के मुजस्मे की। रब ने उस वक्त जब दीन को जरूरत पड़ी, उस वक्त कासिम नानोतवी की शक्ल में अल्लाह ने दीन को मुजाहिद दिया है, दीन को जर्नैल दिया है, इस्लाम का हीरा दिया है। और दुनिया ने देखा खानकाहों में बैठने वाला वो सूफी, खानकाहों में बैठने वाला वो नीली लुंगी वाला, खानकाहों में बैठने वाला वो कुरान का कारी, खानकाहों में बैठने वाला वो दीन का मुअल्लिम, खानकाहों में बैठने वाला वो शाह वलीउल्लाह के दीन का परवरदा, खानकाहों में बैठने वाला वो नबुव्वत के उलूम का वारिस तरह तरह मैदान में निकला है। उसने शामली के मैदान में अकेले फौजी का ललकार के बतला दिया है कि मत भूलो मोहम्मद के नाम लेवा आज भी जिंदा है। हाँ, मत भूलो, हमने कोई ईंटें रख के देवबंद का आगाज नहीं किया, हमने कोई गारा बनाकर देवबंद का आगाज नहीं किया। मत भूलो अपनी तारीख को। मैं तो अपनों से कहता हूं मौलवियों और खुद को देवबंदी कहलवाकर रोटियां खाने वाला, मत भूलो खुदा की कसम देवबंद का आगाज हाथ में तलवार लेके हुआ है। मत भूलो अपनी तारीख को। देवबंद तो उन हीरों का नाम है कि जब शामली के मैदान में जाने के लिए मजलिस शूरा का इजलास मुनक्किद हुआ, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सदारत कर रहे हैं। आज बड़े बड़े आते हैं हाजी साहब का नाम लेने वाले, और मैं कहता हूं हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की का नाम लेने वालों, और हमें बतलाते हो
हाजी साहब ने फला जगह पे मिलाद में शिरकत की, हाजी साहब मिलाद को जायज समझते थे। और क्या ये नहीं पता कि हाजी साहब जिहाद को भी जायज समझते थे? क्या ये नहीं पता कि हाजी साहब ने तलवार उठाने का सबक दिया था? यह वो वक्त था, मजलिस शूरा का इजलास हो रहा है, हाजी साहब सदारत कर रहे हैं, मौलाना कासिम नानोतवी बैठे हैं, मेरे अकाबिर के सरखेल मौलाना रशीद अहमद गंगोही बैठे हैं, मेरे अकाबिरीन वहां तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हालात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि किस तरह अंग्रेज का मुकाबला किया जाए, किस तरह नबुव्वत के दीन को बचाया जाए, किस तरह पैगंबर की विरासत का तहफ्फुज किया जाए, किस तरह ऐलान जिहाद का आगाज किया जाए। अभी बातें हो रही हैं, एक शख्स ने दरमियान से कह दिया, हजरत अभी मुअख्खर कर दीजिए, हालात साजगार नहीं, अभी मुअख्खर कर दीजिए, हमारी तादाद थोड़ी है, अभी मुअख्खर कर दीजिए, असलहा मौजूद नहीं, अभी मुअख्खर कर दीजिए, वसाइल मौजूद नहीं, फिर कभी लड़ेंगे जब ताकत जमा होगी, फिर कभी लड़ेंगे जब तादाद ज्यादा होगी, फिर कभी लड़ेंगे जब फला होगा फला होगा। नाना नानोतवी जैसा जर्नल उठ के खड़ा हो गया है। उठाओ तारीख की किताबें, हजरत नानोतवी ने उठकर उसी वक्त ऐलान करते हुए कहा है, और तुम कहते हो कल को देखा जाएगा, और कल को अगर नबुव्वत का दीन मिट गया तो फिर कयामत के दिन क्या देखा जाएगा? क्या जवाब दोगे? बतलाओ। तुम कहते हो वसाइल कम है, बतलाओ क्या तुम्हारे पास तलवारें और बदर के साथियों से ज्यादा कम है? बतलाओ तुम्हारी तादाद कम है, क्या गाजियाने बदर से भी कम है? बतलाओ तुम्हारे पास सामान नहीं, क्या मोहम्मद के पहले लश्कर से भी ज्यादा कम सामान है? नहीं नहीं, हमारे पास सामान भी है, हमारे पास वसाइल भी है, हमारे पास ताकत भी है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत न इंसानों की ताकत देखते हैं, न बाजू की ताकत देखते हैं, न नसब की ताकत देखते हैं, न दौलत की ताकत देखते हैं, न वसाइल की ताकत देखते हैं। जब वो देखने पे आते हैं ईमान की ताकत देखते हैं, जब वो देखने पे आता है जज्बात की ताकत देखता है, जब वो देखने पे आता है इखलास की ताकत देखता है, जब वो देखने पे आता है नियत की ताकत देखता है। फिर दुनिया ने देखा ताकत हार गई है। नानोतवी का जज्बा, नानोतवी का ईमान, नानोतवी का इखलास, नानोतवी का तत्वा, नानोतवी की लिल्लाहियत, नानोतवी के जज्बात, नानोतवी का इखलास मैदान के अंदर जीत गया है। और जीता कैसे है? आओ आज मैं तुझे शामली के मैदानों की सैर कराऊं, जहां से देवबंद की तारीख का आगाज हुआ है। मेरे दोस्तों, शामली के मैदान में मेरे अकाबिर निकले हैं, ये पहली बात थी। मैं कहता हूं उस वक्त तो हालत ये थी, आज इराक पे हमला हुआ, कहते हैं जनाब बहुत बड़ा कारनामा हो गया। मैं कहता हूं ये तो एक मुल्क की बात है, एक खित्ते की बात है। उस वक्त पूरे बर्रे सगीर पर, पाको हिंद पर, बर्रे सगीर के ऊपर, बरतानिया के ऊपर, सारी जगह पे अंग्रेजों की हुकूमत है। और वो ऐलान किया करते थे फख्र से, हमारी वो हुकूमत है जहां पे सूरज गुरूब नहीं होता, एक तरफ गुरूब होता है तो दूसरी तरफ तुलू होता है, उस तरफ गुरूब होता है तो पहली तरफ तुलू होता है। वो उस वक्त फख्र से कहा करते थे। मैं कहता हूं बतलाओ उस दौर में जब एक अंग्रेज की हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब ना होता हो, क्या फरंगी को तरह तरह ललकारना कोई मामूली सी बात थी? पूरी दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं, अकेला नानोतवी अपने छोटे से लश्कर को लेकर मेरे नबी की सुन्नत को पूरा करते हुए बदर के मैदान की तरह शामली में निकला है और कुफ्फार के तोपखाने छीने हैं, कुफ्फार का असलहा छीना है, अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया है, हाजी जामिन जैसा बातकवा बाशरीयत शख्स शहीद करवाया है। मेरे दोस्तों, कुर्बानियों की दास्तान रकम करके देवबंद की तारीख का आगाज कर दिया है। हमें फख्र है अपने अकाबिर की तारीख पर, हमें फख्र है अपने बुजुर्गों के किरदार पर। खुदा की कसम, आज जान के बदले ईमान बेचने वाले बड़े मिल जाएंगे, लेकिन जान बेचकर ईमान की कदर करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वही शख्स जान कुर्बान करके ईमान बचाता है जिसको ईमान की कीमत का पता हो, वरना एक लम्हे में ईमान जाता है। आजकल के दौर में रसूलुल्लाह ने इसी दौर के बारे में ही कहा होगा, फरमाया एक कयामत के नजदीक जमाना आएगा, लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे। हाँ, यही वो दौर है, ईमान फिसल रहा है। आज के दौर में ईमान मजबूत करने की जरूरत है। मैं कहता हूं माजी के नुकूश मेरे अकाबिर के पढ़ो, उनको सामने रखो। कहते हैं जी आजकल हालात बड़े खराब हैं। मैं कहता हूं उस वक्त भी बड़े खराब थे। आजकल क्या हालात खराब हैं? आजकल छापे पड़ते हैं, नानोतवी पे छापे नहीं पड़े? मत भूलो, हजरत नानोतवी पे छापे पड़े हैं। वो हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह का मशहूर वाकया है। 3 दिन तक एक घर में लोगों ने कहा रूपोश हो जाइए, हजरत नानोतवी मान नहीं रहे थे, बिलाखिर रूपोश हो गए। 3 दिन के बाद बाहर निकल आए, लोगों ने कहा हजरत पुलिस आपको तलाश कर रही है, अंग्रेज तो कुत्ते की तरह आपको ढूंढते हुए फिर रहे हैं, आप बाहर निकल आए हैं। फरमाया 3 दिन से ज्यादा रूपोश रहना मेरे आका की सुन्नत के खिलाफ है। बतलाओ जो नबी की सुन्नत को देखते हुए जान की परवाह नहीं करता, लाओ ऐसा आशिक रसूल। कहते हैं जी गुस्ताख है, अगर ये गुस्ताख है तो लाओ आशिक कहां पे है? मेरे दोस्तों,
یہ وہ لوگ ہیں, قدر کرو ان کی تاریخ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور میں تو کہتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جن کو زمانہ بناتا ہے, لیکن ان کو تاریخ نے نہیں بنایا, یہ تو خود تاریخ بناتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ اور ہی ہوں گے کہ جن کو زمانہ بنا گیا, وہ اور ہی ہوں گے کہ جن کو اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں. اہل دل, یہ اہل دل لوگ تھے, انہوں نے تاریخ کے ماتھے کو جھومر کی طرح سجایا ہے. یہ اہل دل تھے, انہوں نے اپنے تقوی اور الہیت سے نئی تاریخ کے باب رقم کیے ہیں. انہوں نے غداریوں کی داستانوں کو پسے پشت ڈال کر وفا کی داستانیں رقم کی ہیں. انہوں نے جرت و استقامت کے باب رقم کیے ہیں. میرے دوستو, حضرت نانوتوی نے جب وہ آغاز کیا جہاد کا تو ضرورت تھی کسی چھاؤنی کی. ہاں, فوج ہونا تو چھاؤنی ہونی چاہیے, ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے. فوج ہو تو کوئی مرکز ہونا چاہیے. آؤ, یہ تھا وہ مرکز جس کو آج دیوبند کہا جاتا ہے. بڑے آتے ہیں آج کل نام لینے والے, ہم بھی دین والے ہیں. میں نے شروع میں کہا نا, دین والے, دین کی حفاظت والے, دین کے پاسبان ہر دور میں اللہ کی پسند کے ہوتے ہیں. یہ نہیں جو کہے میں دین والا ہوں وہی پاسبان ہے, غلط ہے. جو کہے میں بھی دین کا پاسبان ہوں, قرآن کھول کے دیکھ لو کہ دین کے پاسبان ایسے ہی ہوتے ہیں. دین کے پاسبانوں کی نشانیاں خدا کی قسم قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. اٹھاؤ قرآن, قرآن بتلاتا ہے دین والے وہ ہیں, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, وہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں اصلی دین والے. قرآن سے پوچھو اصلی کون ہے. قرآن کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور یہ ہے اصلی, اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کی راتیں مسلح پہ گزرتی ہیں, ان کے دن میدان جہاد میں گزرتے ہیں. یہ ہے اصلی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے عباد الرحمن, وہ رب کے بندے ہیں. جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون, کامیاب لوگ ہیں. یہ ہے اصلی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب, ایمان لاتے ہیں غیب پر. یہ ہے اصلی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یقیمون الصلاۃ, نماز کو ادا کرتے ہیں. یہ ہے اصلی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, حلوے کی پلیٹوں میں ایمان نہیں بیچتے بلکہ کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں. یہ ہے اصلی. ہاں ہاں, قرآن سے پوچھ, تجھے ایک ایک اصلی کی نشانی بتلاتا چلا جائے گا. قرآن اصلی کون ہے؟ وہ کہتا ہے یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, صبح بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں, شام بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں. وہ اصلی یہ نہیں شام کو کسی اپنے دادے کو ٹیلی فون کرتے ہیں, صبح کو کسی مزار پہ گردن جھکاتے ہیں. نہیں, یدعون ربهم, جب مشکل ہو رب کو پکارتے ہیں, جب آسانی ہو تب بھی. بولو بولو, کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یہ نشانی ہے ان کی. اور بتلاؤں اصلی کون ہے؟ بولو, بتلاؤں اصلی کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے اور تمہارے کون؟ صحابہ, میرے اور صحابہ کے دشمنوں سے پیار بھی نہیں کرتے. یہ اصلی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست نہیں بناتے. یہ ہے اصلی. ان سے تعلقات نہیں رکھتے. یہ ہے اصلی. اور پوچھتے ہو, آؤ بتلاتا ہوں, وہ ہے اصلی. آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نہ ابا پیارا, نہ اماں پیاری, نہ بیٹے پیارے, نہ اولاد پیاری, نہ بیوی پیاری, نہ کاروبار پیارا, نہ کنبہ پیارا, نہ قبیلہ پیارا, نہ ماحول پیارا, نہ معاشرہ پیارا. پیارا ہے یا محمد پیارا ہے یا محمد کی جماعت پیاری ہے. یہ ہے اصلی جن کا رب کے سوا کسی سے تعلق نہیں. ایک اور پہچان ہے, یہ ہے اصلی جن کا ہر عمل, توجہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ اصلی ہے جن کی پہچان یہ ہے ان کا ہر عمل کفر کی نظر میں بغاوت ہوا کرتا ہے, خدا کی نظر میں عبادت ہوا کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ وہ ہے اصلی جن کا ہر عمل کفر کی نظر میں دہشت گردی ہوا کرتا ہے, خدا کی نظر میں اطاعت خداوندی ہوا کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ وہ اصلی لوگ ہیں. ان اصلیوں سے خدا نے دین کا کام لیا ہے. ان اصلیوں سے کام لیا ہے. نقلیوں کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں. خدا تو دھوکہ نہیں کھاتا. کافروں نے بھی کہا تھا ہم تو الا انہم هم السفہاء, ان کی طرف ایمان لائیں. اللہ نے کہا ان کی طرح لاؤ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. انہوں نے کہا ہم تو مذاق کرتے ہیں. اللہ نے کہا اچھا تم کرتے ہو, مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو, لو پھر میں تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہوں. ہاں,
असलियों से खुदा काम लिया करता है। तुझे नकली माल पसंद नहीं, खुदा को नकली क्यों पसंद हो? तू नकली माल बाजार में जाके कहता है 2 नंबर चाहिए जी, 1 नंबर नहीं चाहिए, मांगते हैं। अगर 1 नंबर पसंद करता है, रब की नजर का इंतखाब तो गलत नहीं हो सकता। नानोतवी का इंतखाब किया है 1857 के बाद। देवबंद की वादी में बुनियाद रखी है दारुल उलूम की, मैंने नहीं रखी। आका ने ख्वाब में फरमाया नानोतवी देवबंद की बुनियाद रखो। फरमाया आका कहां पे रखूं? इशारा दिया, निशान लगाए। हजरत फरमाते हैं सुबह उठा, अपनी आंखों से देखा, वहां पे निशान लगे हुए थे, जिसकी बुनियादों को आका ने रखा और मदरसा बन गया। मैं कहता हूं मदरसे पहले भी बनते आए हैं, मदरसे आज भी बन रहे हैं, लेकिन मैंने तारीख की किताबों में देखा है 2 मदरसे हैं जिनके बनने पे कुफर के ईवानों में दरारें पड़ गई हैं। एक सुफ़ा का मदरसा है, एक देवबंद का मदरसा है। हाँ, सुफ़ा का मदरसा पढ़ा अबू जहल की नींद हराम हो गई, देवबंद का मदरसा पढ़ा अंग्रेज की नींद हराम हो गई। और उनको पता था ये सूफियों का मदरसा नहीं, मुजाबरों का मदरसा नहीं, इसकी तो एक एक ईंट से मुजाहिद पैदा होंगे। उनको पता था मुजाबिर नहीं मुजाहिद हैं, उनको पता था ये दीन के गाजी हैं, उनको पता था बिकने वाले नहीं, तुर्कों को तावीज देने वाले नहीं, उनको पता था ये गैर मुस्लिमों के साथ रवाबत रखने वाले नहीं, उनको पता था 132 साल गुजरने के बाद भी इसकी मट्टी से हुर्रियत की खुशबू आती रहेगी। उनको पता था ये बना तो हमें निकलना पड़ेगा। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि अंग्रेज को पता था कि यह मदरसा नहीं, यह तो इल्म की छावनी है, यह मदरसा नहीं, यह तो मुजाहिदों का बेस कैंप है, यह मदरसा नहीं, यह तो एक तहरीक है, यह मदरसा नहीं, यह तो इल्म और हिकमत का मकसद है, यह तो मदरसा नहीं, यह तो जिहाद की तालीम की शाहराह है, यह मदरसा नहीं, यह मोहम्मद के दीन को दुनिया में सर बुलंद रखने का एक किला है, यह मदरसा नहीं, यह एक तारीख है, किरदार की अजमत का एक मीनार है। इसी वजह से तो किसी ने कहा है यह इल्म हुनर का गहवारा, तारीख का वो शहपारा है, हर फूल यहाँ एक गुलशन है, हर सरू यहाँ मीनारा है, खुद साकी ये कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरत्तब करती है दीवाना की रूदाद यहाँ, कौसर यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। शुरू में मैंने कहा देवबंद किसी किताब का नाम होता बारिश में भीग जाती, देवबंद किसी किताब का नाम होता फाड़ दी जाती, देवबंद किसी किताब का नाम होता हुरूफ और नुकूश मिटा दिए जाते, जला दी जाती, देवबंद किसी इमारत का नाम होता तो तोपों से उड़ा दी जाती, देवबंद किसी सिक्के का नाम होता तो मंसूख कर दिया जाता, देवबंद किसी कानून का नाम होता तो कोई LFO मुसल्लत कर दिया जाता। नहीं, देवबंद तो जज्बात की बेकरानी का नाम था, देवबंद तो मोहम्मद से वफा का नाम था, और देवबंद तो आका के दीन से वफादारी का आहद था। देवबंद एक तहरीक का नाम है, देवबंद लिल्लाहियत और तकवा की बुनियाद का नाम है, देवबंद इस्लाम की अजमत के मीनार का नाम है। और दुनिया ने आज तक अपनों ने क्या, बेगानों ने क्या, कुफर ने क्या, यहूदियत ने क्या, ईसाइयत ने क्या, फरंगी ने क्या, हिंदू ने क्या, सिखों ने क्या, पारसी ने क्या, आर्य समाज ने क्या, कायनात का कोई फितना ऐसा नहीं, राफिजियत ने क्या, सवाइयत ने क्या, कुफर ने क्या, जुल्म सितम उद्वान ने क्या, हर एक ने जोर लगा छोड़ा है कि देवबंद को मिटा दिया जाए। लेकिन और ये ऐसी तारीख है, भुलाना भी चाहोगे तो नहीं भुला सकोगे, नहीं भुला सकोगे। ऐसी तारीख का नाम है, ऐसे किरदार का नाम है, सारी कायनात भुलाना भी चाहे नहीं भुला सकेगी, इसलिए कि उन्होंने अपने खून से रूदाद वफा मुरत्तब की है, उन्होंने अपने खून से रूदाद वफा मुरत्तब की है। और आओ मैं दिखलाता हूं कौन थे वो सूफी जिनसे कुफर कांपता था, कौन थे वो मौलवी। आज कहते मौलवियों को क्या पता, मैं कहता हूं तेरे एटम बम से इतना नहीं डरता कुफर जितना मौलवी से डरता है। इसलिए क्या उनको पता है मौलवी के दिल में अगर गैरत ईमानी जाग उठी, मौलवी वाकई नबुव्वत के दीन का पासबान बन गया, दीन के तकाजों का उसको पता चल गया कि असली कौन होते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा जीना महाल हो जाएगा। इसलिए कि आका ने तभी तो फरमाया था अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद कयामत तक जारी रहेगा। और फरमाया तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतुल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, जब जिहाद छोड़ दोगे जिल्लत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी। जिहाद की उस वक्त की छावनी देवबंद थी, देवबंद की छावनी में जिहाद के मुजाहिद पैदा हुए, नामवर पैदा हुए, गाजी पैदा हुए, इल्म और हिकमत के खजाने
वहां से फले फूले। और मैं तो कहता हूं देवबंद की मट्टी तुझे सलाम है, तेरी अजमत को सलाम है। तेरी मट्टी ने मुफस्सर पैदा किए हैं, तेरी मट्टी ने मुहद्दिस पैदा किए हैं, तेरी मट्टी ने मुजाहिद पैदा किए हैं, तेरी मट्टी ने इस्लाम के हीरो और जर्नैल पैदा किए हैं, तेरी मट्टी ने बाकिरदार पैदा किए हैं, बेगैरत पैदा नहीं किए, बेज़मीर पैदा नहीं किए, बेकिरदार पैदा नहीं किए, टके टके पे बिकने वाले पैदा नहीं किए, बल्कि ऐसे बाकिरदार पैदा किए हैं जिनकी अजमत को दुश्मन ने भी तस्लीम किया है, जिनकी जुर्रत, जिनकी इस्तकामत, जिनकी हिम्मत, जिनकी गैरत को देखते हुए कुफर को कहना पड़ा है कि कौन कर सकता है तेरी अना का सौदा, तेरी हिम्मत का, तेरे सच का, वफा का सौदा। वक्त शाहिद है यहां कर लेते हैं चंद सिक्कों के एवज लोग खुदा का सौदा। हाँ, जिस दौर में सब कुछ बिकता था उस दौर में उन्होंने किरदार नहीं बेचा। किरदार, यही तो कुफर को लड़ता था, यही तो कुफर के लिए खार था, यही तो कुफर की आंखों में खटकता था। और फिर दुनिया ने देखा कि वो कोई माई के लाल बेचारे वहीं नहीं बैठे रहे, उन्होंने कुर्बानियों की दास्तान रखा। और कभी पूछो तो सही हमसे कि हम हैं कौन। मैं कुछ ना सही, लेकिन जिनका नाम लेता हूं खुदा की कसम वो बड़ा कुछ थे, बड़ा कुछ थे वो लोग। आओ एक एक का नाम गिनवाने लगूं तो वक्त खत्म हो जाए। उस मदरसे का जर्नैल प्रिंसिपल कासिम नानोतवी, दुनिया जानती है, अकेले ने कुफर को ललकारा आखिर दम तक। एक वाकया लिखा है किताबों में, हजरत नानोतवी एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने आकर कहा हजरत बड़ी परेशानी है। फरमाया क्या हुआ? फरमाया एक पादरी कई दिनों से यहां आया हुआ है, लोगों का ईमान खराब कर रहा है, अपने इल्म, अपनी मंतक, अपने फलसफे के बलबोते पर लोगों के ईमान से खेल रहा है। हजरत जरूरत है किसी ऐसे शख्स की जो जाकर उस आदमी का मुकाबला करे। हजरत नानोतवी सादगी के पैकर थे, नीले रंग की लुंगी पहना करते थे, खद्दर का लिबास पहना करते थे, कपड़े की टोपी पहनी हुई है, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज से फारिग हुए, उसने आकर कहा ऐसी ऐसी बात है, वो हजरत नानोतवी को नहीं जानता। मौलाना ने फरमाया भाई एक देहाती सा आदमी हूं, एक गवार सा आदमी हूं, जाहिल सा शख्स हूं, मुझे ले जाओ, उसके साथ मैं निपट लेता हूं। उसने कहा मौलवी तू क्या करेगा, वहां तो बड़े बड़े मौलवी हमारे इलाके के ऐसे हैं, उसके साथ बात करने से घबराते हैं, तुम भी जाके देख लो। मौलाना नानोतवी के बारे में लिखा है, हजरत नानोतवी स्टेज पे गए, मुनाजरे का ऐलान कर दिया गया, मौलाना नानोतवी ने कदम रखा, वो पादरी छलांग लगा के भाग गया। किसी ने पूछा बात क्या है, कहता इससे तो 10 मुनाजरे आगे हार चुका हूं, अब मजीद हारने की हिम्मत नहीं है। हाँ, वो शख्स है इस्लाम का वकील। लाओ, ऐसा कहां से लाते हो, कहां से लाओगे उन लोगों को ढूंढ कर जो कभी डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, कतराने वाले नहीं। यहां मुनाजरा रखते हैं, खुद ही पुलिस को फोन कर देते हैं, यार खतरा भी है, थोड़ा सा तशरीफ ले आएंगे, मुनाजरा होने नहीं देते। होता है ऐसा ही नहीं होता? हाँ, आओ उन लोगों को देखो जिन्होंने हक की वकालत की है और लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली का मिस्दाक बन के बतलाया है कि आका का दीन सारी कायनात के दीनों पे गालिब है, आला है, अरफा है, बरतर है, बुलंद वाला है। और उसी नानोतवी के मदरसे का फैज था। पहला शागिर्द जो पढ़ के फारिग हुआ उसको दुनिया तहरीक रेशमी रुमाल का हीरो शेखुल हिंद महमूद हसन कहती है। हाँ, सूफी नहीं थे, खाली सूफी होते तो अंग्रेज ना कांपता, खाली सूफी होते 4 साल तक माल्टा की जेल में न लिटाया जाता, खाली सूफी होते काला पानी की कैदें न काटनी पड़ती। हाँ, वो दीन के मुजाहिद थे, आका के दीन के असली मुहाफिज थे, असली 100% खालिस। इसी वजह से पकड़ के ले जाया गया हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को। और मैं कहता हूं ऐसा अजीम शख्स हजरत शेखुल हिंद महमूद हसन, कौन कौन से वाकयात सुनाऊं, खुली किताब की तरह खुदा की कसम उनके रोशन वाकयात सामने आ रहे हैं। एक ही वाकया सुनाता हूं, झलकियां पेश करना चाहता हूं, मेरे अकाबर के ताबिंदा और रखशिंदा किरदार को समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कौन शेखुल हिंद महमूद हसन, जब दुनिया से रुखसत हुए, फट्टे के ऊपर लिटाया गया हजरत को गुस्ल देने के लिए, तो लोग धाड़े मार के रोने लगे। देखा तो हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन के जिस्म पर दागे हुए जख्मों के सैकड़ों निशानात थे और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। लोगों ने पूछा जनाब मौलाना महमूद हसन को तो बीमारी भी कोई नहीं थी, किसी किस्म का कोई ब्लड प्रेशर नहीं, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, आखिर वजह क्या है, यह क्या हो गया, हड्डियों का ढांचा क्यों बन गया, जिस्म पे इतने जख्मों के दाग कैसे बन गए? मौलाना चीचक के मरीज तो नहीं थे, ये जख्मों पे दाग कहां से आए हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी की आंखों में आंसू आ गए। शेखुल हिंद के होनहार शागिर्द हजरत शेखुल हिंद के जानशीन मैदान में आके कहते हैं, और मेरे उस्ताद ने मुझसे अहद लिया था किसी को मेरी मौत से पहले न बतलाना,
हजरत दुनिया से चले गए हैं। मैं बतलाता हूं कि ये निशान किसके हैं। ये एक एक निशान तहरीक आजादी का किरदार है। ये एक एक निशान तारीख के औराक की जीनत है। ये एक एक निशान माल्टा की जेल की तारीख को रकम करने वाला है। उन लोगों ने पूछा है क्या, उन्होंने कहा मेरे उस्ताद को जब माल्टा की जेल में ले जाया गया है और इनके जिस्म को सलाखों के साथ गर्म करके दागा जाता था, लेकिन शेखुल हिंद से पूछा जाता था मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, अंग्रेजों का साथ दे, इस्लाम से बगावत कर। उसने एक ही जवाब दिया था जो 1400 साल पहले मोहम्मद की साहबिया सुमैया ने अबू जहल को दिया था। उसने भी कहा था अबू जहल तुझे तेरी सरदारी पे नाज है, मुझे मोहम्मद की वफादारी पे नाज है। शेखुल हिंद ने अंग्रेजों को ललकार के कहा था और मुझे बगावत पे आमादा करने वालों और मुझे टौटी और एजेंटी के सबक सिखाने वालों, याद रखो देवबंद का पड़ा हुआ न टौट हुआ करता है, न एजेंट हुआ करता है, न बिकने वाला हुआ करता है, न झुकने वाला हुआ करता है। मैं ऐलान करके कहता हूं और तुझे अपनी सरदारी पे नाज है, मुझे मोहम्मद की वफादारी पे नाज है। ढूंढकर मैं कहता हूं एक एक खुदा की कसम, क्या किसी ने फारसी का शेर कहा है, हर गुलेरा रंग बुए दीगरस्त, जिस फूल को देखता हूं खुशबू ही निराली है, खुदा की खुशबू ही निराली है, इल्म तकवा में बेमिसाल है। हाँ यही शेखुल हिंद है। हजरत मदनी फरमाते हैं रात को मुसल्ले पे खड़े हो जाया करते थे, कुरान पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन के दीन से इतना प्यार है, जेल की तन्हाइयों में भी रब से रिश्ता नहीं तोड़ा। ऐसे लाओ वफादार, इन्हीं के शागिर्दों को अल्लाह ने शरफ बख्शा है। एक एक मुजाहिद पैदा हुआ। हजरत शेखुल हिंद को मामूली सी बात है 4 साल माल्टा की जेल काटी है। कितने? अपने गिरवानों में झांक के देखो, तेरा बेटा 4 दिन के लिए जेल में चला जाए, क्या गुजरती है? फौरन मुकदमे, जमानतें, परेशानियां, फलां ये। वो भी तो किसी माई के लाल थे, वो भी तो किसी के लखते जिगर थे, लेकिन उनको इस हकीकत का पता था, बाबू तुझे नहीं पता कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। आमना के लाल से प्यार सारी कायनात से ज्यादा कीमती है, इसीलिए तो 4 साल जेल काटी है, प्यार नहीं छोड़ा। हजरत मदनी आए, खुदा की कसम इस मुजाहिद का नाम आता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ढूंढती हैं आंखें जियारत के लिए कि काश ऐसा कोई अब भी आ जाए, काश ऐसा बतले हुर्रियत पैदा हो जो अंग्रेज को इस तरह ललकार सके। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, सारे कह दो, हमारे पीर और मुर्शद शेख को मुकद्दर ने बहुत ज्यादा बुलंदी पे पहुंचाया। रब्बुल आलमीन ने हजरत शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह को यह सादत बख्शी कि 14 साल तक मदीना मुनव्वरा के अंदर उसी मदरसे में, जिस मदरसे में मोहम्मद अरबी ने हदीस पढ़ाई है, उसी मदरसे में हुसैन अहमद ने हदीस पढ़ाई। गुंबद खजरा के साए में बैठकर 14 साल, हाँ जी मामूली सी बात नहीं है, बड़ों बड़ों के दाखिले बंद हो जाते हैं, वहां पे जाना, 14 साल रहना, फिर हदीस मुस्तफा पढ़ाना और गुंबद खजरा के साए में पढ़ाना और मोहम्मद के रोजे के सामने जालियों पे नजर रख के पढ़ाना मामूली सी बात नहीं है। दुनिया तरसती है एक नजर देखने को, जो 14 साल देखता रहा, 14 साल उन जालियों की जियारत से मुस्तफीद होता रहा। सिर्फ जियारत से नहीं, तवज्जो, सिर्फ जियारत से नहीं, तारीख में लिखा है कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जाया करते थे, रात इशा की नमाज के बाद तक दर्स हुआ करता था। दर्स हदीस देने के बाद जब सारे तलबा चले जाते, हजरत मदनी रोज़ा रसूल का दरवाजा खोल के अंदर चले जाते। एक दिन किसी ने देखा हजरत मदनी अपनी दाढ़ी से मेरे मुस्तफा के रोजे की सफाई कर रहे हैं। आशिक तलाश करते हो, लाओ ऐसे आशिक। हजरत मदनी से किसी ने पूछा, हजरत आप तो वजीफा भी नहीं लेते, मदीने से तनख्वाह भी नहीं लेते, कहां से खाते हैं, कहां से पीते हैं? फरमाया खाने पीने की ना मत पूछो। कहा हजरत पीते खाते कहां से हैं, वजीफा नहीं मिलता। फरमाया दिन को बाजारों में निकलता हूं, महबूब की गलियों में पड़े हुए छिलके उठाकर धोकर उबाल के खा लिया करता हूं, और कमली वाले के शहर की गुठलियां खजूरों की उठाकर उनको पीस कर उनका सुकूप बना रखा है, रोजाना थोड़ा सा खाकर ऊपर से पानी पी लिया करता हूं। रब का लाख शुक्र अदा करता हूं, जो मर्जी मिले, मोहम्मद का शहर तो मिला है ना। हाँ, ऐसे लोग तलाश करके लाओ, कहां से लाओगे? मोहम्मद के दियार में बसने वाले और रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर के पास बैठे हैं। आए हाय, अंग्रेज की तरफ से वारंट गिरफ्तारी आ गए। मदीने में बैठा हुआ शख्स मोहम्मद का पड़ोसी सल्लल्लाहु, बोलो, हथकड़ियां पहनाई गई नबुव्वत के रोजे के सामने, पहना कर ले जाया जा रहा है। पीछे मुड़ के देखते हैं रोज़ा नबुव्वत की जालियों की तरफ और तड़प के कहने लगे,
फरमाया मैं जान से भी तुझ पर फिदा हो जाता, तुझे कभी ना छोड़ता, लेकिन मदीना आज तेरे मुस्तफा के दीन के लिए हथकड़ियां पहनी हैं। आका आज तेरे दीन को बचाने के लिए हथकड़ियां पहनी हैं। तो मैं देख रहा हूं एक तरफ मदीना है, एक तरफ मदीने वाले का दीन है। दीन पे कट जाना चाहता हूं, मदीना फिर देख लेंगे। और दुनिया ने देखा है, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हथकड़ियां पहने हुए शेख के साथ ही गिरफ्तार करके माल्टा की जेल में ले जाया गया, काले पानी की जेल में कैद कर दिया। 4 साल हजरत मदनी वहां कैद रहे। सारी जिंदगी में कुल हजरत मदनी ने 14 साल कैद काटी है। कितनी बोलो? हाँ जी, 14 साल जिंदगी का एक हिस्सा हुआ करता है, जिंदगी का एक बड़ा अरसा हुआ करता है। 14 साल कैद काटी है मेरे शाख हुसैन अहमद मदनी ने। वो हुसैन अहमद मदनी है, खालिक दीना हाल आज भी कराची में मौजूद है। वहां पे जज ने बुलाया, कहने लगा मौलाना सुना है बगावत की है आपने? फरमाया कौन सी बगावत की है? कहने लगा अंग्रेज की फौज में भर्ती को गलत करार देते हुए हराम कहा है। फरमाया कहा है, क्या होता है? अब भी कहता हूं, आइंदा भी कहूंगा, तुम जो करते हो करो। उसने कहा मौलाना पता है हम ऐसे लोगों को सजाए मौत दिया करते हैं। फरमाया हम भी ऐसे लोगों के सामने कफन साथ लाया करते हैं। हाँ, लिए फुर्ती है बुलबुल चूंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहां है। हम तो कफन साथ लेके आए हैं, मौत को तलाश करते फिर रहे हैं, 2 सजाए मौत। उसी वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह आए, आकर हजरत मदनी के कदमों पे अपनी टोपी रख के कहने लगे हजरत खुदा के लिए बयान बदल दीजिए। फरमाया बयान बदला तो मोहम्मद का दीन बदल जाएगा। मैं ये रिवायत नहीं डालना चाहता, बल्कि बदला देना चाहता हूं। जो असली हुआ करते हैं ना दीन बदला करते हैं, ना मौक़िफ़ बदला करते हैं, ना नजरिया बदला करते हैं, ना बयान बदला करते हैं। नहीं बदला बयान, नहीं बदला बयान। हजरत मदनी को रब्बुल आलमीन ने इतनी अजमत अता की है। झलकियां सुना रहा हूं कि शोरश ने इसी हजरत मदनी के बारे में कहा था कि शहर इस्तिबदाद के दीवारों दर ढाता रहा, पाए इस्तेहकार से दुनिया को ठुकराता रहा, और नूर के दड़के दुआ को हाथ फैलाता रहा। इस कबीला में कोई भी हम रकाब इसका नहीं। मेरे दोस्तों, ये वो हुसैन अहमद मदनी है जिनकी अजमत को सलाम सारी कायनात कर रही है, जिनकी अजमत को अपने नहीं बेगाने भी तस्लीम करते हैं। ये वो हुसैन अहमद मदनी है। माल्टा की जेल काटी, हिंदुस्तान की जेलों में रहे, 14 साल जेल काटी, लेकिन नबुव्वत के दीन पे सौदेबाजी नहीं की। मेरे दोस्तों, एक एक की बात करते हो। एक का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है, यह भी देवबंद का एक फूल कहलाता है। यही अबुल कलाम आजाद 10 साल तक मुख्तलिफ जेलों में रहे, रांची की जेल में रहे, मुख्तलिफ जेलों में रहे। लेकिन किसी ने पूछा अबुल कलाम जेल में रह के क्या किया है? फरमाया और तो कुछ नहीं कर सका, अल्लाह के कुरान की तफसीर लिखी है जिसका नाम तर्जुमानुल कुरान है। हाँ, मेरे अकाबिर ये कुछ करते रहे हैं। शेखुल हिंद माल्टा की जेल में थे, फारिग औकात में अल्लाह के कुरान की तफसीर लिखी। आज भी दुनिया शेखुल हिंद के तर्जमा और तफसीर को जानती है। मेरे दोस्तों, मेरे अकाबिर ने जेलों में बैठ के कुरान और दीन की खिदमत की है। उन्होंने जेलों में बैठ के मेरे नबी के दीन को सरबुलंद किया है। आओ, इनका तज़किरा करना चाहते हो। एक का नाम हजरत मौलाना जाफर थानीसरी है, जिनको लाहौर से मुल्तान ले जाया जा रहा है। ले जाते हुए काला पानी की तारीख में वो अपनी आप बीती खुद लिखते हैं। फरमाते हैं मालगाड़ी के डब्बे के अंदर खारदार तारों के जंगला बनाया गया, ऊपर भी खारदार तारे हैं, नीचे भी खारदार तारे हैं, दाएं बाएं भी खारदार तारे हैं, हर तरफ खारदार तारे लगी हुई हैं। ना आदमी बैठ सकता है, ना टेक लगा सकता है। और यहां से लाहौर से रुखसत किया गया, यहां से रवाना किया गया। मालगाड़ी के डब्बे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, कभी किसी जगह स्टॉप, कभी किसी जगह रुकते हैं, कभी किसी जगह रुकते हैं। वो अपनी आप बीती में लिखते हैं 2 महीने के अंदर लाहौर से चलकर वो मालगाड़ी के डब्बे मुल्तान की सरजमीन पे पहुंचे। 2 महीने तक खारदार कांटों के ऊपर खड़े होकर मोहम्मद के दीन का तहफ्फुज करने वाला अकाबिरीन उलमाए देवबंद का सरखेल कहलाता है। लाओ ढूंढ कर ऐसे आशिक। दूर दूर से गुस्ताख कहना बड़ा आसान है। हम दूध पीने वाले मजनू नहीं हैं, खुदा की कसम, हमने तो कुर्बानियां दी हैं। वो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हमारे बुजुर्गों में से एक थे, जिनके बारे में आते हैं हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह एक दफा जामिया अल अजहर मिस्र के अंदर तशरीफ ले गए। वहां पे उनको बुलाया गया, कहा मौलाना तकरीर कीजिए। फरमाया उन्वान बतलाइए। उन्होंने कहा फिका हनफियत की हक्कानियत पे तकरीर करनी है। मौलाना ने उस वक्त खड़े होकर फिका हनफी इमाम अबू हनीफा की अजमत और हक्कानियत पर दलाइल देने शुरू किए। जब दलाइल दे के फारिग हुए, तकरीर पर आखिर दावाना कहा। एक अंग्रेज, एक काफिर आकर मौलाना के कदमों में सर रख के कहता है हजरत खुदा के लिए हाथ आगे कीजिए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। फरमाया बतला तो दे किस वजह से कलमा पढ़ना चाहता है।
कहता मैंने देखा है एक मौलवी इमाम अबू हनीफा की सच्चाई पे इतने दलाइल रखता है, वो मोहम्मद की हक्कानियत पे कितने दलाइल रखता होगा। वो इमाम अबू हनीफा की फिका की हक्कानियत और सच्चाई पर इतने दलाइल रखता है, उसको मोहम्मद के दीन की हक्कानियत पे कितना एतमाद और कितना उसको उसके ऊपर उबूर हासिल होगा। तो मैं इस बात से मुतासर होकर आज इस हक्कानियत को समझकर मोहम्मद के दीन का गुलाम बन जाना चाहता हूं। कहां से लाओगे ऐसे जिनके चेहरे देख के लोग कलमा पढ़ा करते थे। मेरे दोस्तों, वो हुसैन अहमद मदनी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मैंने आगे भी कई मर्तबा ये वाकया सुनाया है। एक अंग्रेज एक ईसाई गाड़ी के बाथरूम में जाता है, बाथरूम के अंदर गंदगी फैली हुई है, वो उसी तरह वापस आ गया। सफाई पसंद था अपने आप में, लेकिन वहां आके बैठा तो हजरत मदनी समझ गए कि ये कज़ाए हाजत से फारिग होकर नहीं आया, इतनी जल्दी वापस आ गया है दरवाजे से ही, कोई वजह है। हजरत उठ के तशरीफ ले गए, देखा पखाना और गंदगी फैली हुई है। हजरत ने अपने मुबारक हाथों से गंदगी को साफ किया। साफ करने के बाद वापस तशरीफ लाए। वो बड़ा परेशान कि मैं तो गया था, 1 मिनट भी नहीं ठहर सका, ये मौलवी गया है तो इतनी देर लगा के आया है। दोबारा उठ के गया तो गंदगी साफ थी। समझ गया कि हुसैन अहमद ने साफ की है। नाम से वाकिफ नहीं, मकाम से वाकिफ नहीं, शख्सियत से वाकिफ नहीं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी आकर अपनी सीट पे बैठे हैं, वो भी खामोशी से बैठा है। जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी देवबंद के स्टेशन पे पहुंचे, अभी कदम नीचे नहीं रखा कि लाखों का ठाठे मारता हुआ इंसानों का समंदर हजरत मदनी की अजमत को सलाम करने के लिए स्टेशन पे आया खड़ा है। हजरत मदनी ने जो ही कदम नीचे रखा है, लोग हाथ चूमने के लिए आगे बढ़े हैं। हजरत मदनी ने रोक दिया है। वो आदमी भागा हुआ हुजूम में से एक शख्स से पूछता है, ओ यार ये आदमी है कौन? उसने कहा ये आदमी शेखुल हिंद महमूदुल हसन का जानशीन है। ये आदमी गुंबद खदरा की फिजाओं में काल अल्लाह व काल रसूल की सदाओं को बुलंद करने वाला है। ये आदमी मोहम्मद के दीन का सही वारिस है। ये आदमी काले पानी की जेल में अंग्रेज के सामने नबी के दीन की पासबानी करने वाला है। ये आदमी और दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद पे बैठकर 40,000 को शेखुल हदीस बनाने वाला है। और ये शख्स नबी के दीन को पढ़ाने वाला है, उलूम नबुव्वत का मुहाफिज और निगहबान है। उस वक्त उसने जब देखा कि यह शख्स है, उसी वक्त हजरत मदनी का हाथ चूम के कहने लगा, हजरत कलमा पढ़ा दीजिए, इसलिए कि आपने ट्रेन का बाथरूम साफ नहीं किया, एक ईसाई का दिल साफ कर दिया है। लाओ, ऐसा कहां से लाते हो? हमें गुस्ताख कहते हो, उसको गुस्ताख कहते हो। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह कह दो। हाँ, उस कासिम नानोतवी को मदीने में दाखिल हुए, जूती ना पहनी। किसी ने कहा हज़रत जूती तो पहन लें। फरमाया आका की महबूब शहर की गलियां हैं, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जिन गलियों में महबूब की तलियां लगी हैं, उन तलियों पे मुस्तफा के, उन शहर की गलियों के अंदर उन तलियों वाली जगह पर मुस्तफा के नुकूशे कदम के ऊपर नानोतवी के जूते आ जाएं। ना ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज नबी के नक्शे पाक की तस्वीरें 2-2 रुपए में बेचकर कहते हो बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। मैं कहता हूं प्यार करना हो तो उसकी तरह करो, कासिम नानोतवी की तरह, जिसने जूता नहीं पहना। और साथियों ने कहा हजरत पांव जख्मी हो जाएंगे, अरब की रेत है, संगलाख वादियां हैं, पत्थर फैले हुए हैं। फरमाया तुम जख्मों की फिक्र करते हो, मुझे मुस्तफा के अदब की फिक्र है। हाँ, उनसे प्यार है हमें, हम उनके नाम लेवा हैं। किन की बात छेड़ दी यार? मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लाया गया, पकड़ के लाहौर की सरजमीन पर बंद कर दिया गया सिविल लाइन में। थोड़े दिनों के बाद हजरत ने कहा यार तुम्हारे जेल में एक मस्जिद है, मुझे यहीं पे कुरान पढ़ने की इजाजत दे दो। फरमाया जरूर पढ़ लिया करें। हजरत ने कुरान का दर्स देना शुरू कर दिया। तारीख में लिखा है हिंदू पत्थर बरसाया करते थे, लाहौरी कुरान की लहरें बरसाया करता था। हिंदू पत्थरों की बारिश करते थे, लाहौरी कुरान के मोती बखेरा करता था। और दुनिया ने देखा है मेरे अकाबर का किरदार, खुदा की कसम मैं कहता हूं मुझे नहीं जरूरत किसी दलील की। हुसैन अहमद का वजूद, शेखुल हिंद का वजूद, अहमद अली लाहौरी का वजूद मेरे मसलक की हक्कानियत की दलील है। इसलिए कि उन्होंने सौदेबाजी नहीं की, वो बिकना नहीं जानते थे। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी दरसे कुरान दे रहे हैं सिविल लाइन की मस्जिद में, और जाओ आज देखो सिविल लाइन नहीं है, लाहौरी की मस्जिद आज भी मौजूद है, लाहौरी का मरकज आज भी मौजूद है। मिटाने वाले खुद मिट चुके हैं, कुरान वाले आज भी जिंदा हैं, उनका नाम आज भी तबिंदा और रिख्शिंदा है। कुरान वाले थे, दीन वाले थे। इसीलिए तो कहा है शोरश ने अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उम्र भर कुरान का पैगाम समझाता रहा, उम्र भर कुरान का पैगाम समझाता रहा, हर घड़ी इस्लाम की तबलीग फरमाता रहा। दोस्तदारा ने जुनू का दिल बढ़ाने के लिए दास्ताने जुर्अते असलाफ दोहराता रहा, और इस सनम आबाद में तौहीद
तौहीद की तनवीर था, वो इस गए गुजरे में मेरे मुस्तफा के दीन की तस्वीर था। मेरे दोस्तों, लाहौरी ने इस दौर में पैगंबर के दीन को दुनिया के सामने असली शक्ल में पेश करके बतला दिया है कि आज भी वो लोग जिंदा हैं जो जान तो दे सकते हैं, मोहम्मद के दीन पे आंच नहीं आने दे सकते। देवबंद की बात करते हो, किरदार के गाजी थे ये लोग, किरदार वाले थे। हाँ, इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, सारे जहां के सर पे है एहसान मुस्तफा, और सदा उस पे रहमते परवरदिगार हो। पैदा किए हैं जिसने फिदायान मुस्तफा, गूंजेगा चार खोट में नानोतवी का नाम, बांटा है जिसने बादाए इरफान मुस्तफा। और काफर गरों की खेप है उन पे तानाजन कि जिसका हर एक फर्द है दरबान मुस्तफा। आज उनको गुस्ताख कहते हो जिन्होंने मुस्तफा के दीन की चौकीदारी सिखाई है, आज उनको काफिर कहते हो। जुबानें दराज करना बड़ा आसान है, माल्टा की जेलें काटना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हाँ, मैं रात पढ़ रहा था, एक किताब चौधरी गुलाम नबी नामी शख्स ने लिखी है, कमाल कर दी है उसने, तहरीक कश्मीर से तहरीक खत्म नबूवत तक। उसने लिखा, वो कहता है यार हैरान रह जाते हैं जब हम अकाबिर को देखते हैं, कहते हैं जी आज बड़ा मुश्किल दौर है। क्या मुश्किल दौर है? लाओ वो लोग जिन्होंने मेरे अकाबिर जितनी जेलें काटी हों। मैं तो देखता हूं, हैरान रह जाता हूं। कई तो ऐसे थे मौलवी भी नहीं थे, फिर भी जेलों में जा रहे हैं। और तुम्हें क्या हुआ? कहते मुस्तफा के दीन की पासदारी मिल गई है। और तुम तो मौलवी भी नहीं। वो कहते हैं चौकीदार के लिए मौलवी होना जरूरी है? हम तो चौकीदार हैं आमना के लाल के दीन के। शेख हुस्सामुद्दीन को देखो, 10 साल जेल काटी है इस शख्स ने। हाँ, देखो शोरश काश्मीरी को 10 साल 4 महीने जेल काटी है अल्लाह के दीन के लिए। देखो हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को 10 साल 2 महीने जेल में रहे हैं। और देखो जाकर सैयद मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को 6 महीने जेल में रहे। अब्बा को शहीद कर दिया गया लेकिन दीन का दामन नहीं छोड़ा। जाओ देखो हुसैन अहमद मदनी को 14 साल जेल काटी है। जाओ जाकर देखो शेखुल हिंद महमूदुल हसन को 4 साल तक काले पानी की जेल काटी है। जाओ जाकर देखो जाफर थानेसरी को और कितनी देर काले पानी की जेलों में गुजार छोड़ी है। जाओ जाकर देखो मौलाना मुबारक अली को जो जेल में उम्र कैद की सजा काटते हुए फौत हो गए हैं, जनाजा जेल से निकला है। जाओ जाकर देखो मौलाना यहया अली, मौलाना सादक अली को अंबाला के रहने वाले हैं लेकिन उम्र कैद की जेलें काट रहे हैं। जाओ जाकर देखो मेरे अकाबरीर और मेरे बुजुर्गों को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद 10 साल तक जेल काटते हैं। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी 8 साल तक जेल काटते हैं। मौलाना शेख हुस्सामुद्दीन कई साल तक जेलों और जिंदानों में कैद रहते हैं। और ये तो कहता हूं, मैं कहता हूं एक अनपढ़ आदमी और गुलाम नबी जाबाज जैसा एक शायर 10 साल तक जेलों में रहता है। खत्म नबुव्वत की तहरीक में जेल के अंदर अंग्रेजों ने बाजू तोड़ दिए लेकिन उसने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा है। हाँ, आज मामूली सी परेशानी आती है, ओ जी क्या करें जी, मर गए जी, फंस गए जी। क्या हो गया है? वो माई के लाल नहीं थे, वो किसी के लगते जिगर नहीं थे, वो किसी के प्यारे नहीं थे, वो किसी के लाडले नहीं थे। क्या उन्होंने माँ के दूध नहीं पिए थे? क्या उन्होंने किसी की आवाज में झूले नहीं झूले थे? क्या वो किसी बिस्तर पे अपनी माँ के पास नहीं ठहरे थे? और वो क्या कभी किसी की औलाद नहीं थे? वो क्या किसी के वालिद नहीं थे? किसी के भाई नहीं थे? उनकी बहनें नहीं थी? उनके बच्चे नहीं थे? उनका खानदान नहीं था? उनका कबीला नहीं था? नहीं, सब कुछ था। सिर्फ बात इतनी सी थी, उनको सारी चीजों से ज्यादा प्यार आमना के लाल से था। हाँ, आज हमारे अंदर किरदार नहीं रहा, फिक्र नहीं रही, सोच नहीं रही। मसलहत की बातें करते हैं। आज मसलहत की बात की है, इराक पे हमला हुआ है, वो इसी मसलहत को तुम्हें ले डूबेगी। खुदा की कसम ये बेगैरती है, मसलहत नहीं है, ये बेहयाई है, बेहमियती है। आज कुफर तेरे भाइयों पे चढ़ दौड़ा है, कल तेरे ऊपर चढ़ेगा, तुझे भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज उनका सिर्फ खबरों में सुनकर, अखबारात, रेडियो, टेलीविजन देखकर कहते हो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी मजम्मत करते हैं, बड़े जुलूस निकालते हैं, बड़े जलसे निकालते हैं। और तेरे किसी जलसे, किसी जुलूस, किसी बात का उनको कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है उनको? हाँ, किरदार के साथ कौमें बना करती है। वो तो किरदार के ख्वाह हुआ करते हैं। लाओ किरदार, या उनका नाम लेना छोड़ दो या किरदार लाओ, किरदार दिखाओ। हमें तो किरदार की जरूरत है और आज के दौर में सिर्फ किरदार है जो मुसलमान को बुलंदी तक पहुंचा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खुतबाते अबुल कलाम में बड़ी प्यारी बात है, फरमाते हैं लोगों शिकवा करते हो गैरों का, शिकवा करते हो दूसरों का, मत शिकवा करो, मत दूसरों को कहो। दूसरों को क्या कहते हो? अपना दामन देखो। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ां
रूह बिलाली न रही। आज के दौर में नाम लेते हो, किरदार कोई नहीं। काम यहूदियों वाले, काम ईसाइयों वाले, और मेरी न मानो, आमना के लाल की मान लो। फखरे दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन सरवर आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, आका क्या निशानी है जब आपकी उम्मत पस्ती और जिल्लत का शिकार होगी? फरमाया अन्नाल बिन्नाल, जब वो कदम ब कदम यहूदियों के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर देगी, उस वक्त उनकी जिल्लत और पस्ती की इंतहा हो जाएगी। बतलाओ, अपने दामन में झांक के देखो, लिबास यहूदियों जैसा, वज़ाकता यहूदियों जैसी, तौर तरीके यहूदियों जैसे, रस्मों राज यहूदो नसारा जैसे। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज तेरे पास किरदार की दौलत नहीं, इसी वजह से पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहे हो। आज किरदार की बुलंदियों पे आओ, आज इस्तकामत और जुर्रत के पैकर बढ़ो। खुदा की कसम कुफर उसी तरह खौफ खाएगा जिस तरह तेरे बड़ों से कांपता रहा है। वैसे ही तो किसी ने नहीं कहा शाद बाशो शाद जी, ए सरजमीन देवबंद, हिंद में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। शहर इस्तिबदाद की गर्दन है और तेरी कुमंद, और कुफर नाचा जिनके आगे 12 तिगनी का नाच। जिस तरह जलते तवे पर रक्स करता है सपंद, हाँ जिस तरह सांप जलते तवे पर रक्स करता है, इसी तरह मेरे अकाबिर के सामने कुफर नाचा है। इसी तरह मेरे अकाबिर ने कुफर को तिगरी का नाच नचाया है। इसलिए नहीं कि उनके पास तोपें बड़ी थी, इसलिए नहीं कि मिसाइल बड़े थे, इसलिए नहीं कि फिजाई ताकत थी, इसलिए नहीं कि बड़े बड़ी बेड़े थे, इसलिए नहीं कि उनके पास बड़े वसाइल थे, दौलत बड़ी थी, चंदा बड़ा लेते थे। नहीं नहीं, फौज नहीं, कोई वसाइल नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई ताकत नहीं, एक अल्लाह पे भरोसा था, एक अल्लाह की ताकत थी, एक अल्लाह की नुसरत थी, एक जज्बात थे, ईमान की हमीयत थी, गैरत थी, खुलूस था, तकवा था, लिल्लाहियत थी, रातों की इबादत थी, सुबह का जिहाद था, जिहाद की तालीम थी, मसलहत से दूरी थी, कुफर से बगावत थी, दीन से मोहब्बत थी। हाँ, ये उनकी दौलतें थी, इनकी वजह से उन्होंने दीन को सरबुलंद किया है। और अल्लाह का फजल है जो आज हम ये 4 आदमी दीन का नाम लेने वाले हैं, खुदा की कसम उनकी कुर्बानियों की बरकत है। मत भूला करो अपने एहसान फरामोशों को। क्यों भूलते हो शामली में खून बहाने वालों को? क्यों भूलते हो माल्टा की जेलों को आबाद करने वालों को? क्यों भूलते हो? चलो दूर ना जाओ, मियां वाली चले जाओ, उस जेल से ही जाके पूछ लो, वो तुझे बताएगी। क्या पूछते हो हुसैन अहमद यहां रहे? क्या पूछते हो कफायतुल्लाह देलवी यहां रहे? क्या पूछते हो गाजी हक निवाज शहीद यहां पे रहे? क्या पूछते हो गाजी इल्मुद्दीन यहां पे रहे? और क्या पूछते हो अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा एशिया का बतले जलील यहां पे रहे? पूछते क्या हो? आओ अपनी आंखों से देख लो, यही वो काल कोठड़ियां हैं। आज अगर तुम्हारा कोई चला जाए तो रात की नींदें हराम हो जाती हैं, और उन्होंने 10-10 साल काल कोठड़ियों में गुजारे हैं आमना के लाल के दीन के लिए। क्यों भूलते हो उनको? क्यों फरामोश करते हो? हाँ, एक बात आखिरी अपनों से कहता हूं, आज के दौर में देवबंदी कहलाना बायसे आरसा बन गया है। बड़े परेशान होते हैं। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, उनसे गुफ्तगू करें ना, वो बेचारे हमें बरेलवी समझ लेते हैं, और फिर गुफ्तगू में कहते हैं हम जी माशाल्लाह इस्लामी भाई होते हैं। क्या होते हैं? तो हम सारे इस्लामी भाई माशाल्लाह। ठीक है कि नहीं? इस्लामी भाई असली हैं, हम असलियों की बात हो रही है भाई। हाँ, असली हैं अल्लाह के फजल से। जब थोड़ी सी गुफ्तगू खुलती है तो हम बतलाएं कि नहीं भाई आपको गलत फहमी हुई है, आप इस्लामी भाई होंगे नकली, हम अल्लाह के फजल से देवबंदी हैं। फिर वो फट कहते हैं नहीं नहीं हम भी देवबंदी हैं। मैंने कहा चलो पता नहीं मौलवी साहब बुरा महसूस न करें। होता है ऐसा भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, क्यों आर महसूस करते हैं, क्यों शर्म महसूस करते हैं? उनको अपने अकाबिर के किरदार का नहीं पता। मत भूलो, अकाबिर का किरदार सिर्फ पढ़ो नहीं, अपनाओ भी, उसके ऊपर जिंदगी गुजारो, उसको मशअले राह बनाओ, उसको जिंदगी की किंदील समझकर उन उसूलों को अपनाओ। और ये बात मत भूलो कि जो कौमें अपना किरदार छोड़ दिया करती हैं, मैं रात एक किताब पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा हुआ था कि जो कौम ज़हनी तौर पर गुलामी कबूल कर लिया करती है, उस कौम के ईमान का एतबार नहीं किया जा सकता। उस कौम के ईमान का एतबार, हाँ, जो ज़हनी तौर पर गुलामी कबूल कर चुकी है, कल को किसी वक्त भी कुफर की गुलामी कबूल करके वो कुफर कबूल कर लेगी, इस्लाम के दस्तबरदार हो जाएगी। मत कबूल करो गुलामी। हमें हमारी माओ ने आजाद जना है, अल्लाह का शुक्र है हम आजाद पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह आजाद रहेंगे। मैं गुलामों को दिया करता हूं दरसे हुर्रियत, मेरा पेशा है बगावत, बागी कहलाता हूं मैं। मेरे अकाबिर ने तो ये सबक दिए हैं भाई हमें। क्यों भूलते हो? आज नाम लेते हैं अकाबिर का, और बाज तो ऐसे नाम ही नहीं लेते, जो नाम लेते हैं उनकी हालत बेचारों की ये है, नाम लेते हैं काम टकेगा नहीं, नाम लेते हैं जब कभी मुश्किल पड़ी तो भागते यूं हैं जैसे गधे के सर से सींग। हाँ,
नाम लेते हैं अताउल्ला शाह का, नाम लेते हैं कायदीन अहरार का, नाम लेते हैं शेखुल हिंद का, रोटियां बनाने के लिए नाम लेते हैं महमूदुल हसन का, नाम लेते हैं हुसैन अहमद का। जेल में जाने की बारी आए, जी बुजुर्ग काट गए हैं जेल, अब तो दौर ही बड़ा मुश्किल आ गया है, अब तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अब तो छुप कर वक्त निकालना चाहिए मसलहत के साथ, आका के दीन की जो खिदमत भी हुजरे में बैठ के हो जाए काफी है। गलत बात है, देवबंदी हो हथकड़ी ना पहने, नहीं हो सकता। देवबंदी हो बेड़ी ना पहने, नहीं हो सकता। देवबंदी हो जेल ना जाए, कैसा देवबंदी है? देवबंदी हो गैरत ना हो, देवबंदी हो हमीयत ना हो, देवबंदी हो और जेलों से डर जाए। ना ना, मेरे अकाबिर तो आए इसलिए थे, उन्होंने खुदा की कसम दिलों से कुफर का खौफ छीन छोड़ा है, उन्होंने एक रब से डरना सिखाया है, एक रब के दरवाजे पे झुकाया है, उन्होंने बतलाया है कोई कुछ नहीं है एक अल्लाह के सिवा, ना तेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना तेरा कुछ तोड़ सकता है, ना कोई नुकसान कर सकता है। एक रब है जो सारी ताकतों का मालिक, सारी कुव्वतों का मालिक, सारी अजमतों का मालिक। आज उस रब से डरना शुरू कर दे, सारी दुनिया का खौफ खत्म हो जाएगा। और आज हालत यह है, रब से नहीं डरता, सारी दुनिया के गुनाह करता है इसलिए कि रब का खौफ नहीं, सारी दुनिया के जराइम करता है इसलिए कि रब का खौफ नहीं। और दूसरों का खौफ इतना है, आदमियों का खौफ इतना है, इंसानों का खौफ इतना है, यहां बैठ के कांप रहे हैं, वो जी इराक पे हमला हो गया, बाद में हमारी बारी है, इराक पे हमला हो गया, हमारी बाद में हमारी बारी है। पढ़ते रहो तराने, ये इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, गैरत पैदा करो, जुर्रत पैदा करो, हमीयत पैदा करो, ये नहीं बैठे बैठे आदमी तराने पढ़ता रहे, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ये तो वो बात है, मुझे वो लतीफा याद आ रहा है, सुनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हालत हमारी वो हो चुकी है कि कोई लड़की थी, घर से भागना चाहती थी अपने आशना के साथ, तो उसने रात को ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सुबह को घर में से एक आदमी कम हो जाएगा, सुबह को घर में से एक फर्द कम हो जाएगा, सुबह को घर में से एक फर्द कम हो जाएगा। सुबह माशाल्लाह देखा तो मोहतरमा गैर, अब घर वाले बजाय ये करने के वो ऊपर से क्या कह रहे हैं, बड़ी करनी वाली सी माशाल्लाह, हाय है अल्लाह करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी चंगी सी। देख राती दास्ता एक बंदा कट होया ना, राती दास्ता देख माशाल्लाह, कितनी बलायत अल्लाह ने, कितनी करामत थी। देखो ऐसी करामतें छोड़ दो, किरदार से बड़ी करामत कोई नहीं। सुन्नत पे चलना सीखो, तकवा, जुर्रत, हिम्मत, गैरत, इस्लामी हमीयत पैदा करो। मेरे अकाबिर ने ये सबक हमें दिए हैं, मत भूलो ऐसी बातों को। ये क्या बात हुई, छोटी छोटी बातों के ऊपर यही करना, ये हमारे अकाबिर का वतीरा नहीं है, ये हमारे अकाबिर का तकवा नहीं है, ये हमारे अकाबिर का दिया हुआ सबक नहीं है। सबक ये है, जहां हक की बात हो डट जाओ, डट जाओ, डट जाओ, कट जाओ, लेकिन हक पे झुको ना, झुको। हाँ तो फिर आज वादा करो, हक पे तो क्या किसी कब्र पे नहीं झुकेंगे, चलो इतना ही कर लो, किसी कब्र पे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। हाँ मैं एक और बात अर्ज करता चलूं, हालात तो खराब हैं, कोई वक्त का पता नहीं है, हमारे अपने अमाल ही ऐसे हैं, कोई वक्त नहीं है, कोई पता नहीं कब क्या सूरत हाल होती है। एक बात कहता हूं, घर बार की फिक्र ना करो, माल की फिक्र ना करो, औलाद की फिक्र ना करो, ये काम नहीं आएंगे। ईमान की फिक्र करो, जान चली जाए चली जाए, आज से ये मुराकबा करना शुरू कर दो, खुदा की कसम पक्के हो जाओगे। रोजाना 2-4 मिनट 5 मिनट रात को सोने से पहले सोच लिया करो कि यार जब जनाजा उठेगा तो कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं चलेगा, तो ये कब्र तक छोड़ के वापस आ जाएंगे सारे, अकेला होगा तने तनहा। कब्र की तारीकियों पे थोड़ा सा गौर कर लिया कर, सोचा कर, फिर उसके बाद क्या यार ईमान कीमती है, जान कीमती नहीं। अगर ना यकीन आए तो सहाबा को थोड़ा सा तसव्वुर में ले आया कर कि उन्होंने क्या बतलाया है, उनकी जिंदगियां क्या कहती हैं, क्या कीमती है, जान कीमती है या ईमान? बोलो हाँ। अगर ईमान कीमती है तो आज से अहद करो, क्या बचाएंगे, क्या बचाएंगे? जान जाती है चली जाए लेकिन ईमान बचाना है इंशाअल्लाह। जान पे खेल के बचाना है, सब कुछ लुटा के बचाना है, इसलिए कि हमें सब ने यही बतलाया है। हमें पैगंबर से लेकर हुसैन तक, हुसैन से लेकर अबू हनीफा तक, अबू हनीफा से लेकर इमाम अहमद इब्न हंबल तक, इमाम अहमद इब्न हंबल से लेकर कासिम नानोतवी तक, कासिम नानोतवी से लेकर अबुल कलाम तक, अबुल कलाम से लेकर आज तक हक निवाज शहीद तक, हमें सब ने यही बतलाया है कि क्या बचाना है, क्या बचाना है। तो इंशाअल्लाह हमने ईमान बचाना है। ईमान बच गया तो इंशाअल्लाह आमना के लाल के सामने सुखरू हो जाएंगे। ईमान न बचा, सब कुछ भी बचा के चले गए, वहां कुछ भी काम नहीं आएगा। रब्बुल आलमीन हमें ईमान पर डटे रहने की, इस्तिकामत इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए, हक पर हमेशा कायम दायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।